بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ علماء کرام، صدر اجلاس، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے صبح سے ابھی تک آپ لوگ بیٹھے رہے۔ اب آخر میں ہمیں کچھ وقت ملا ہوا ہے آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ تھوڑی دیر اور صبر کر کے بیٹھیں گے۔ دوستو، جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنا ہے، آپ نے سنا صراط مستقیم ایک ہے، یعنی یوں سمجھے اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اور صراط مستقیم بھی وحدہ لا شریک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو بھی بالکل لا شریک رکھا ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا اور ایک کیسے ہے، اسی کے متعلق سے آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ ابھی آپ نے سنا کئی مشائخ کے زمانی سورۃ انعام کی آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ تقریباً اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی 2 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی ہیں، 10 چیزوں کا تذکرہ کیا، 10 تعلیمات دی، اور ان تعلیمات کے بعد آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے وہ یہی صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اور تمہیں اسی صراط مستقیم کی اتباع بھی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خبردار اس راستے کو ایک کو چھوڑ کر کے 2-4 راستے نہیں اپنانا، ورنہ نقصان کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے ایک راستہ چھوڑ کر کے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے اور کوئی راستہ اختیار کیا تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صراط مستقیم تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، صراط مستقیم ختم ہو جائے گی۔ اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ادھر جانا نہیں چاہتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا، فَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ شِمَالِهِ۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد اس کی مزید وضاحت اور تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک لمبی لکیر نبی علیہ السلام نے کھینچی، اور جیسے کہ دوسری روایت میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کا تذکرہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے وقت کی تنگی کے بنا پر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسی لکیر کھینچی کہ دنیا انسان جب تک زندہ ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، انسان کی زندگی سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ وہ مفصل حدیث ابھی بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ایک لمبی شاہراہ کھینچی، وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے آپ نے راستے اور کھینچ دیے، اور سارے راستے کھینچ دینے کے بعد آپ نے اپنا دست مبارک اس لمبی لکیر جو سیدھی آئی تھی، بڑی لمبی لکیر، آپ نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ایک راستہ جو لمبا آیا ہے، جس میں نہ لیفٹ ہے نہ رائٹ ہے، نہ نیچے ہے نہ اوپر ہے، ہموار بس ایک سیدھا راستہ شاہراہ چلی جا رہی ہے، اور یہاں سے شروع ہے اور اس کی انتہا جنت کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس صراط مستقیم پر ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا
फरमाया वला तत्तबिउ सुबुल, इसी एक रास्ते की इत्तिबा करना। यहाँ एक रास्ता है, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, छह नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ कोई और रास्ता हो। वला तत्तबिउ सुबुल, किसी और रास्ते की इत्तिबा नहीं करना। अगर तुमने एक रास्ता छोड़ करके किसी और रास्ते की इत्तिबा किया भटक जाओगे। फिर आपने वजाहत फरमाया, ऐ लोगों याद रखना, एक रास्ता तो हमारा है जिसकी इब्तिदा यहाँ से है और इंतहा जन्नत है, लेकिन इसके दाएं बाएं जितने रास्ते हमने खींचे हैं वाला रासिया शैतानुल, और उस पर हर रास्ते पर एक शैतान बैठा हुआ है। ये सारी शैतान ये रास्ते, अब हो सकता है वो शैतान यहाँ जो बैठा हुआ है, शैतान जो बैठा हुआ हर रास्ते पर सिराते मुस्तकीम उस शायरा के अलावा जितने रास्ते हैं हर रास्ते पर अल्लाह ने फरमाया वाला रास्ते कुल्ले सिरातिल शैतानुन, हर पर एक शैतान बैठा है। अब हो सकता है शयातीन इनसे भी हो या शयात जिन भी हो, क्यों बाद अहले इल्म नकल करते हैं, ये भी बड़ी जरूरी है समझना। नबी एक साहब बड़े जोरदार अंदाज में जंगल का सफर कर रहे थे, और आप जैसे बुजुर्ग ने एक साले हो सकता है मुहिर मुत्तबे सुन्नत भी रहा हो, चले जा रहे थे, देखा एक बहुत बुजुर्ग बैठा है एक रास्ते के किनारे और सारे लोग उसका हाथ दबा रहे हैं, कोई पंखा चल रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई पानी दे रहा है, लेकिन उसका छूर बैठे हुए हैं। एक साहब गुजरे, कहा अस्सलाम वालेकुम, सोचा बड़ा नूरानी चेहरा ठीक ठाक लग रहा है, इस वक्त जमाने का सबसे बड़ा वली यही होगा। उसको देखा, अस्सलाम वालेकुम, कहा भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझसे क्यों सलाम कर रहे हो? कहा अरे जिंदगी में ऐसा वली मैंने नहीं देखा, इस जंगल में आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इतने लोग आपकी खिदमत कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जमाने के सबसे बड़े वली हैं, सलाम करो, और आप वालेकुम सलाम कर देंगे तो हमारा सारा बेड़ा कब्र हशर का पाक हो जाएगा। कहा अरे अल्लाह के बंदे जाओ, हम इब्लीस है, शैतान है, अरे आप शैतान नहीं अल्लाह के वली है। कहा बिल्कुल नहीं, मैं अल्लाह के वली नहीं। कहा वल्लाह बिल्लाह तुम अल्लाह के वली हो। कहा फिर वजह कसम न खाओ, मैं अल्लाह की कसम कहता हूं मैं अल्लाह का वली नहीं हूं। कहा क्या दलील है? कहा हमारी दलील ये है कि उन्होंने कहा हम शैतान हैं, हम इब्लीस हैं। कहा नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह का वली हमेशा अपने आप को छोटा कहता है, अब तो 100% यकीन आ गया कि आप वाकई अल्लाह के वली है। क्यों? अल्लाह का वली अपने आप को वली नहीं कहता। अच्छा यही दलील? कहा कि हाँ। तुम्हारी दलील क्या है? शैतान ने अल्लाह से वादा किया है कि हमें मरते दम तक लोगों को गुमराह करता रहेगा। अगर आप इब्लीस होते तो आबादी में जाकर के लोगों को नमाज से रोकते, हज से रोकते और तरह तरह की नेकियों से रोकते। अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, शैतान का काम है लोगों को भटकाना, और यहाँ बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हैं। इसलिए वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अब मैं कहता हूँ अब तक अल्लाह के वली है। कहा भाई तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन जब हमारा काम इंसान करने लगे तब मैं रिटायर होकर के बैठा हुआ हूं, मैं हूं इब्लीस, लेकिन जो हमारा काम था वो अब लोग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और कैसे कर रहे हैं? अभी मंगल का वाकया है, लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस थी, सबकी तकरीरें हुई, एक साहब खड़े हुए, उनका अकीदा ये था कि अल्लाह भी आलिमुल गैब और अल्लाह से रसूलुल्लाह भी आलिमुल गैब। अब बात आई तो उन्होंने सूरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी बयान करना शुरू किया। वइन कुल्ता मिन क़ब्लिही लमिनल
गाफिलीन यहाँ कुंता। ए नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है हम बयान कर रहे हैं, ये किस्सा उस वक्त हुआ जब आप नहीं थे, आपको इल्म नहीं, अब आपको बता रहे हैं। उस जालिम मुकर्रिर ने बड़े मजमे के अंदर हमने कहा शयातीन इनसे भी आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कहा वह इन कुंता लमिनल गाफिलीन, वहां कुंता का तर्जमा कुंतुम कर दिया ताकि हमारा अकीदा बाकी रह जाए। युहर्रिफून अल-कज़िब अन मवाज़िही, ऐसे शयातीन ऐसे भी होंगे कि लोगों को गुमराह करेंगे, भटकाएंगे। कह दिया अल्लाह के लोगों, अल्लाह फरमा रहे हैं कि दुनिया के सारे लोग यूसुफ के किस्से से गाफिल थे। यानी नबी अलैहिस्सलाम को कहने के बजाय वो सीधा अवाम के पास, अवाम की तरफ मोड़ दिया ताकि उसका अपना अकीदा बाकी रह जाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं हर जगह बैठा है, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, वो शैतान तुम्हें एक सिराते मुस्तकीम से भटका देगा। अब जब आपने देख लिया शैतान भी बैठा है, शयातीन इंस और शयातीन जिन, अब ऐसे मौके पर मेरे भाइयों बिल्कुल बात वादे है, सिराते मुस्तकीम एक है, कोई दूसरा सिराते मुस्तकीम नहीं है। इसलिए हमारे बात सलफ कहा करते थे, मसलक सुन्नत बे साली चला जा बेधड़, जन्नतुल फिरदौस को सीधी गई है ये सड़क। मेरे भाइयों, अब इस सिराते मुस्तकीम है क्या? एक ही रास्ता है, बहुत सुन चुके हैं, हो सकता है तकरार हो। सिराते मुस्तकीम तीन चीजों का नाम है, जरा गौर से सुने। सिराते मुस्तकीम एक चीज का नाम नहीं, तीन चीजों का नाम सिराते मुस्तकीम है। नंबर एक किताबुल्लाह की पैरवी, नंबर दो सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी, नंबर तीन अल्लाह अकबर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने में सहाबा के तरीके और मनहज को अपनाना। इसीलिए आज सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, कहते हैं ये दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम अता कर। यही खामोश नहीं हो जाते, कहते ये दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम अता कर दे। फिर आगे क्या पढ़ते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह अपने उन बंदों का रास्ता अता कर जिन बंदों पर आपने इनाम किया है, अपना बड़ा फजल करम किया है। तो यहाँ बात वादी है कि सबसे बड़ा करम अल्लाह ताला जिन लोगों पर किया है वो चार किस्म के हैं। सूरत उन्निसा की आयत अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका, वहसुन उलाइका रफीका। आप कहते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम दे। यहीं पर बस नहीं हो गई, दो चीज और मांगते हैं, अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता, वो सिराते मुस्तकीम अता फरमा, उन लोगों का रास्ता जिन पर चलने वालों पर आपने अपना करम किया है, एहसान किया है। और एहसान नंबर दो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और सिराते मुस्तकीम से जो भटक गए हैं, जिन पर अल्लाह आपका गज़ब नाज़िल हुआ, आपकी लानत, गुमराह और ज़लाल हो गए, अल्लाह ताला उनके रास्ते से बचाना। तो दोस्तों तीन सिराते मुस्तकीम तीन चीजें हैं, एक रास्ता है लेकिन वो रास्ता तीन अरकान है उनके। नंबर एक किताबुल्लाह, नंबर दो सुन्नत रसूलुल्लाह, नंबर तीन असहाब रसूल का तरीका। इसीलिए सूरत तौबा की आयत नंबर 100 वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, तीन किस्म के जन्नतियों का तज़किरा है, तीन किस्म के लोग जन्नत में जाएंगे। नंबर एक अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन सहाबा। नंबर दो वल अंसार, और अंसार जन्नत में जाएंगे। ये सहाबा दो तरह के थे, एक सहाबा मुहाजिरीन है और दूसरे अंसार है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ये तो बंदे हो गए और
नंबर 3 वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान, और अंबिया हैं, मुहाजिरीन और अंसार, और जो इनके नक्श कदम पर चलेंगे, वल्लज़ीना तबऊहुम बिहसान। अल्लाह मुहाजिरीन से राजी, अंसार से राजी, और उन लोगों से भी राजी जो इन अंसार मुहाजिरीन की इत्तिबा करेंगे। आगे फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है। ये है सिराते मुस्तकीम, जो एक ही रास्ता है, 3 चीजों का मजमूआ। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलुल्लाह, नंबर 3 असहाब रसूल। दुआ करो अल्लाह हमें इन तीनों बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आगे अल्लाह ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह मुहाजिरीन से भी राजी, अंसार से भी राजी, और अल्लाह उनसे भी राजी है जो इनकी इत्तिबा करेंगे। नंबर 2 वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अनहार, इनके लिए, इन तीनों के लिए, मुहाजिरीन के लिए, अंसार के लिए, और जो इन दोनों की इत्तिबा करेंगे, इनके लिए अल्लाह एक तो रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी और इनको इतना देगा कि अल्लाह से राजी, ये भी अल्लाह से राजी। नंबर 2 वअद्द लहुम जन्नातुन तजरी तहता अनहार, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत तैयार की है, अहले जन्नत। और इसी को कहा जाता है फिरक़े नाजिया, जो एक हाथ में अल्लाह की किताब और दूसरे हाथ में नबी की सुन्नत हो। इन दोनों पर अमल करना है, इनको पढ़ना है, इनको सीखना है, इनकी दावत देना है, और लेकिन इन पर अमल करने का तरीका उम्मती किसी से नहीं, बल्कि सीखेंगे तो असहाबे रसूल से, असहाब रसूल से सीखेंगे। अल्लाह ने फरमाया ये है नाजी। और मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे बात, मुहाजिरीन को समझते हैं और अंसार को समझते हैं, इनकी पैरवी करने वालों को समझते हैं। उम्मीद है मैं समझता हूँ और कह देने में कोई हरज नहीं। इंशाअल्लाह इस वक्त आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर अगर पूरी कायनात में कहीं असहाब रसूल को अपना उसवा बनाने वाले मौजूद हैं और जो अंसार और मुहाजिरीन के नक्शे कदम पर चलते हैं, तो वो जमात अहले हदीस है। दुआ करो अल्लाह इस समाज से और काम ले ले। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल-अनहार खालिदीन फीहा। आगे फरमाया वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है दुनिया में भी आखिरत में भी। जब आपने समझ लिया कि सिराते मुस्तकीम एक है और 3 चीजों के मजमूए का नाम है, एक सिराते मुस्तकीम किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और फ़हम सलफ और मनहज सहाबा अपनाना। अब सहाबा के क्या किरदार था, बड़े इख्तिसार के साथ, जो टाइम कम है। हजरत इमाम औज़ाई अब्दुर्रहमान बिन अम्र औज़ाई रहमहुल्लाह कहते हैं खम्सुन कान अलैहि असहाब रसूल सल्लम, 5 बातों पर सहाबे कराम कायम थे। इन 5 बातों को सुने और दुआ करें अल्लाह हम सबको इन 5 बातों पर अमल करें ताकि सिराते मुस्तकीम मुकम्मल हो जाए। नंबर 1 कहते लुज़ूम जमाअतिन, जमात से मिल करके रहना, फर्द कायम, रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में हो वीरों ने दरिया कुछ नहीं। मेरे भाइयों इज्तिमाइयत, जमाती जिंदगी गुजारो। अभी हमारे भाई डॉक्टर साहब कह रहे थे 3 आदमी हो तो अल्लाह ने फरमाया वो भी अमीर बनाए, एक अमीर बनाओ। हम नहीं सोचते, अंग्रेज जालिम ने 6 लाख अहले हदीसों को सजाए मौत दिया, 1-2 लाख नहीं। अंग्रेज कसम खाई थी इस दुनिया से हम अहले हदीस जमात को खत्म करेंगे। इसे तकरीबन एक गैर मुस्लिम राइटर लिखता है तकरीबन 6 लाख
अहले हदीसों को अंग्रेज ने सदाए मौत दी, दुनिया से खत्म किया, लेकिन इसके बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं सारी दुनिया घट रही है और अहले हदीसों को दुनिया बढ़ रही है। जूनागढ़ के अंदर हमारे पास एक बड़े आदमी आए और बड़े आनमान के साथ तकरीर सुनी 2 घंटे की, या इसी मौजू पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो हमसे कहने लगे आप लोग अहले हदीस यही कहते हैं? मैंने कहा यही कहते हैं। कहा कहाँ जमात है? मैंने कहा दुनिया में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात है। कहा हर जगह? मैंने कहा और कहा? मैंने कहा कि आसमान चांद और सितारे पर भी हमारी जमात है। वो बड़ा परेशान, ये कैसे? मैंने कहा अगर वहां शिर्क करने वाला होगा, वहां कुफ्र करने वाला होगा और वहां भी चाय बेचने वाला होगा, हाँ वहां भी चाय बेचने वाला हो, वहां भी शिर्क बिदअत की दावत देने वाला होगा, तो इंशाअल्लाह उनकी इस्लाह के लिए अहले हदीस को अल्लाह वहां भी भेजेगा। क्यों? हुज्जत कायम हो। मेरे भाइयों, कहने लगा हमने नहीं समझा था, हमें तो हमारे सामने तो आपकी शिकायत की गई, 50 लोगों ने दरखास्त दिया, जूनागढ़ मस्जिद मोहम्मदी में इसकी तकरीर ना हो पाए, इसलिए मैं खुद आया। हमें अंदाजा लगा कि वाकई इस दुनिया के अंदर अगर कोई शख्स अमानत की, सदाकत की, दयानत की, ज़ुहद की, तकवा की दावत देता है तो आज हम यकीन कर लेते हैं वो जमात अहले हदीस है। इसलिए मेरे भाइयों बता रहा था मोहतरम डॉक्टर साहब ने कहा 3 आदमी, यहाँ तो करोड़ों अहले हदीस है, फिर बगैर जमात के कैसे जिंदगी गुजारेंगे? कौन सी बरकत होगी हमारे अंदर? लज़ूम जमाअतिन। नंबर 2 व इत्तिबा सुन्नतिन, इत्तिबा सुन्नत। दुआ करो सबको इत्तिबा सुन्नत की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम अहमद बिन हंबल गालमन सबसे पहला मर्द मोमिन है जिसने कहा ऐ लोगों अल इस्लाम हो व सुन्नत ही अल इस्लाम। ऐ लोगों खबरदार, सुन्नत और इस्लाम में फर्क नहीं करना। जो इस्लाम है वही सुन्नत है और जो सुन्नत है वही इस्लाम है। क्या मतलब है? बगैर सुन्नत का इस्लाम नहीं है और बगैर इस्लाम के सुन्नत नहीं है। कहते हैं खबरदार, कभी सुन्नत में और इस्लाम में फर्क नहीं करना। सुन्नत वल इस्लाम, और इस्लाम व सुन्नत वल इस्लाम, ये सिराते मुस्तकीम है। दुआ करो हम सबको वही इत्तिबा सुन्ना की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर। कैसे कैसे इत्तिबा सुन्ना, कैसे? कहते हैं अभी हिंदुस्तान के बड़े इदारे में गया था, 5 बैठे थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े इदारे में गया, तलबा में खिताब दिया तो एक बात आई, हमारे एक उस्ताद उन्होंने बताया कि एक जमाना था, अल्लामा फकीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह जब साउथ इंडिया में बेंगलोर के अंदर अहले बिदअत ने अहले हदीसों का नाटका बंद कर रखा था, बेइंतहा परेशान कर रखा था, और कहते अगर किसी शैतान को देखना है तो इस गैर मुकल्लिद को देखो। लोग तंग आ गए, मुनाज़रे के चैलेंज किया जा रहा था। तो उस वक्त मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेटर लिखा, बेंगलोर का वो शख्स जिसको सबसे पहले अहले हदीस बना था, कहा हज़रत हमने बड़ी दावतें दे करके कुछ लोगों को अहले हदीस बनाया, लेकिन ये मौलवी आया हुआ है, हम लोगों को शैतान कहता है और मुनाज़रे के चैलेंज कर रहा है। मौलाना मियां नज़ीर हुसैन सैयद शेखुल कुल मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 आलिम को, 3 शागिर्दों को भेजा। नंबर 1 अल्लामा फकीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरे साउथ इंडिया को मसलक अहले हदीस से भर दिया। नंबर 2 अल्लामा अबुल कासिम शेख बनारसी रहमतुल्लाह अलैह को। नंबर 3 अबू मोहम्मद इब्राहिम आरिवी रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 शागिर्द मियां साहब के, एक पंजाब से और 2 बनारस और यूपी से, ये 2 गए और चाह करके मुनाज़रे के चैलेंज किया। एक दिन 10 नजर आया, उसके बाद कहते हैं वो चैलेंज करने वाला मौलवी कहाँ चला गया आज तक पता नहीं चला।
कहते ही नहीं, अल्लामा फकीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह का कि बेटे मौलाना अताउल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भर दे। जिस मदरसे में पढ़ाते थे वो बोर्ड से इल्हाक था, उसका पता नहीं क्या कहते हैं, इल्हाक को क्या कहते हैं, था माशाल्लाह, जवाब कर दी भाई। लुकमा देना नमाज में जाए तो तकरीर में उधर होता था, तकरीर में लुकमा हो सकता है। ये था, हुआ ये कि वहाँ मौना जब पता चल जाता कि आज हमारे यहाँ यूपी में डिप्टी कहते हैं, पता नहीं कहाँ, उस हुकूमत का आदमी आएगा मुआयना करने के लिए, मुआयना करने के लिए। कहते वल्लाह वल्लाह, वो शख्स जब समझा आज मुआयना करने वाला आने वाला है, तो उनके जहन बात आती, आएगा अगर हम खड़े होंगे तो सुन्नत की मुखालफत हो जाएगी, अगर हम उसके आने पर खड़े हो जाएंगे सुन्नत की मुखालफत हो जाएगी, और अगर नहीं खड़े होंगे तो जाकर के शिकायत करेगा। तुम्हारे बाल मशाइख कहने लगे वल्लाह मौलाना अताउल्लाह सुन्नत दामन से हाथों से ना जाए, सुन्नत पर तक को मजबूती से पकड़ रखें। मगर फजर पढ़ करके आते बच्चों को बैठा देते और एक पैर पर ऐसे खड़े हो जाते, पूरे एक पैर आता सबक पढ़ाते, बच्चों को सबक पढ़ाते और खड़े सुबह आते ही इस मदरसे में खड़े हो जाते। लोगों ने कहा बैठ जाओ, कहा नहीं, अल्लाह अगर बैठ गया वो जालिम आ जाएगा, उसके लिए खड़े हो गए तो सुन्नत रसूल हमसे छूट जाएगी। कहते नौबत ये थी आदि, अगर 2 बजे तक वो नहीं आ रहा है सरकारी आदमी, तो 2 बजे तक खड़े खड़े पढ़ाते थे, कभी किसी चीज से टेक लगा लेते, लेकिन बैठते नहीं थे। क्यों? अल्लाह रसूल ने साथ रमाया, तुम में से जो इंसान अल्लाह खबरदार, जैसे अजमी लोग खड़े होते हैं बड़ों को देख करके, तुम उनके एहतराम में खड़े नहीं होगा। क्या हम आज ऐसी सुन्नत अमल कर रहे हैं? सूद लेने के लिए हम आगे, शादी हाल में बुराइयां हम करें, हर जगह हमने सुन्नत को छोड़ा। ये सिराते मुस्तकीम के खिलाफ है। सिराते मुस्तकीम एक सिराते मुस्तकीम उस वक्त मुकम्मल होगी जब हम सहाबा की तरह सुन्नत पर अमल करें। वही इत्तिबा सुन्नती, सुबह से लेकर के 2 बजे तक, जब तक स्कूल खुला रहे, सिर्फ एक सुन्नत को बाकी रखने के लिए वो अहले हदीस मौलाना अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इब्न फकीरुल्लाह पंजाबी रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठते ही नहीं थे। दुआ करो ऐसे हमें भी तमस्सुक सुन्नत का जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दे। लेकिन गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। आज दाढ़ियां हमारी साफ, नमाज हम छोड़ रहे हैं, सारे मुनकरात हम कर रहे हैं, शादी विवाह में सारे रसूम में जाहिलियत हम कर रहे हैं। अहले हदीस शराअत मुस्तकीम वत्तकू, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह डरते रहो ताकि सिरात मुस्तकीम बाकी रहे। बहरहाल 5 चीजें, नंबर 1 लज़ूम जमाअतिन, नंबर, और फिर अगर हम मिलकर रहेंगे इंशाअल्लाह तो क्या फायदा होगा? यदुल्लाह अलल जमा, हमारे ऊपर अल्लाह का हाथ होगा, मेहरबानी होगी, अल्लाह हमें बढ़ाएगा, तहफ़्फ़ुज़ देगा, खैर बरकत सिनेमा देगा, सारी मुश्किलात और परेशानियों से अल्लाह हमें निजात देगा अगर हमने सुन्नत रसूल की इत्तिबा की और लज़ूम जमा। नंबर 3 वो इमारत मस्जिद, सहाबा मस्जिद को आबाद करते थे, मस्जिद से किनारे, मस्जिद से जुड़ करके रहते थे। आपस में लड़ाई हो, झगड़े हो, इख्तिलाफ हो, लेकिन सहाबा कभी मस्जिद नहीं छोड़ा करते, मस्जिद नहीं छोड़ा करते थे। आज हमारा मामला है सेहत तंदुरुस्ती के बावजूद मस्जिद हम छोड़ दें, वो भी कभी इमाम ने 5 मिनट खुतबा लंबा कर दिया, अब खैर नहीं है। अब मस्जिद से भी नाराज, इमाम से
भी नाराज और पूरी जमात से भी नाराज हो जाए। मेरे भाइयों सब्र करो, सब्र करो। वो इमारत मस्जिद, मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश करो। हम मस्जिदें आबाद हो कुरान के दर्स से, इस सुन्नत की दर्स से, वाज़ नसीहत से, तालीम से, हिफ्ज़ कुरान से, इबादत से और एतकाफात, हर अच्छे काम से मस्जिद हमारी आबाद हो। नंबर 3, नंबर 4 अल्लाह को फरमाया तिलावत कुरान, सहाबा कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते थे। और आज माशाअल्लाह रमजान में हमने कुरान पढ़ा होगा, अब गिनते होंगे 2 महीना और रमजान है, रमजान में 1 खत्म करेंगे सब कुछ। लेकिन ये जो है महाशैतान, जो सब कुछ है कुरान में जुज़दान में लपेटा होगा अगले रमजान तक करेंगे, लेकिन इसको माशाअल्लाह जब तक न गिर जाए हाथ से तब तक नींद भी नहीं आती। अफसोस की बात है, अहले हदीस अफसोस की बात है, कुरान रमजान में और गेम में खेल कूद 24 घंटे हर वक्त बीवी शौहर से परेशान, क्यों? हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है और कहते हम ऑफिस का काम कर रहे, बड़ा टेंशन है हमें तुम और टेंशन नहीं दो। पता नहीं बाद में पता चलता है किस कंपनी में काम कर रहा था वो। मेरे तिलावत कुरान, सिरात मुस्तकीम वालों ने हमेशा तिलावत कुरान का इत्मीम किया है। आखिरी चीज वो जिहादिन फी सबीली, अल्लाह ताला के नाम में जिहाद करना। ये मेरे भाइयों ये सिरात मुस्तकीम के मुतालिक चंद बातें हमने कही और वक्त ज्यादा नहीं गया, लेकिन दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये भी है हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है। माशाल्लाह हमारे भाई टोपी बड़ी जबरदस्त लगाई हुई है, हाँ टोपी खरीदने के गए होंगे तो एक मरतबा ऐसे क्या ख्याल है, ऐसे फिर रख के आईने में सब बराबर है कि नहीं, अब पैसा देते हैं। अरे कोई काली पगड़ी वाला कुछ भी बयान कर दिया, आप वो कबूल कर ले, रिसर्च ना करें। किसी ने कोई बात कह दी, अरे वहां साहब हाँ नई रिसर्च आ गई है, ये मेरा सारा बेड़ा ये गर्क हुआ है। यारो जरा सोचो, चावल खरीदने के लिए जाए तो 10 मर्तबा हाथ में लेते हैं, क्या है? और दीन की बात आ जाए, जिसकी भी बात सुने हमने कबूल कर लिया। इमामों को छोड़ा, मुज्तहिदीन को छोड़ा, मुहद्दिसीन को छोड़ा। दुआ करो अल्लाह हमें सही समझदा फरमाए, जैसे दुनिया की हर चीज तहकीक करके कबूल करते हैं, ऐसे ही अल्लाह हमें अहले हदीस बनाया है। तो मैं समझता हूँ अहले हदीसों को नई चीजों की तहकीक करने की जरूरत है, पुरानी चीजों की तहकीक करने की जरूरत है नहीं है। और दुआ करो हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे सलफ कहते थे 4 इमाम 4 अहले हदीस अल्लाह ने ऐसे पैदा किया कि कद मन्नल्लाहु अला हादिहिल उम्मा, इस उम्मत पर क़यामत जाने वाली उम्मतों पर अल्लाह ताला ने 4 आदमियों को भेज करके पैदा करके बहुत ही एहसान किया। नंबर 1 इमाम शाफी को पैदा करके लोगों को हदीस समझने का रास्ता बताया। नंबर 2 याहया इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह को पैदा करके झूठे फज़ाइल बयान करने वालों को बेड़ा गर्क किया है। झूठे फज़ाइल चलाया रहा है, जिसने कलमा पढ़ा ये मिला 7 ज़मीन आसमान भर के किले किया। कहा की हदीस है, कहा याहया इब्न मईन ने बयान किया, कहा उल्लू का पट्टे मैं याहया इब्न मईन हूँ, तुझे ऐसी फदाइल वाली हदीस बयान की। झूठ बोलता है लेकिन बड़ा लफासा। कहा मैं सुनता था कि कोई बेवकूफ याहया इब्न मईन है, आज पता चल गया तुम पक्के बेवकूफ हो। हम बयान करें क्या कहेंगे, अरे पक्का वहाबी है। मेरे भाइयों कहते हैं नंबर 3 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरबी को बगैर उस्ताद के समझने वाला, वर्ड टू वर्ड, बड़ा फैशन है कुरान का तर्जमा वर्ड टू वर्ड, फिर वही हुआ। एक ये नंबर 4
الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا. ابو عبید قاسم بن سلام جو عربی زبان کو صحیح انداز سے سمجھایا. دعا کر غریب الحدیث لکھے, اللہ سے دعا کرو. یہ 4 امام ہیں جن کو کہا جاتا ہے ہر فتنے کا مقابلہ انہوں نے کیا, اور اہل حدیث انہی کے جانشین ہیں. آج تک ہر فتنے کا مقابلہ کرتے رہے, صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دعوت جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.